Hello students, today we are going to begin with the last topic of this lesson, division of decimal fractions. Division of decimal fractions. In the previous lecture we have seen multiplication of decimal fractions, and for multiplication we have studied three methods. One method was converting the decimal number into fraction. Second was lattice method, and third was our regular vertical arrangement method. Now in division also we are going to study these two methods, and then we will see which method to use. Now let's begin with the division. First question is 6.2 divided by 2. 6.2 divided by 2. Now 6.2 can be written as 62 upon 10. 6.2 can be written as 62 upon 10 divided by 2 can be written as 2 upon 1. So first we have converted both the numbers into fractions. Now how to do division of fractions, that we have seen in the previous lesson, lesson number 4. What is the rule of division? First fraction, keep it as it is. Middle sign change to multiplication, and the reciprocal of second fraction. So reciprocal of 2 upon 1 is 1 upon 2. Reciprocal means inverse, उल्टा. सो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस डायरेक्ट नहीं हो सकता है, उसको हमेशा मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है. सो व्हाट इज द रूल? फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज, मिडल साइन मल्टीप्लिकेशन एंड रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड फ्रैक्शन. नाउ अगेन here the question is in decimal point, so answer should also be in decimal point. So for that we have to write this in the form of decimal fraction only. So what we will do, 62 into 1, 62 upon 10 into 2. Now these two numbers, they can be divided by 2. Divide by 2. Divide by 2. 62 divided by 2. How much we will get? We will get 31. And 2 divided by 2 we will get 1. So here it will remain 10. Okay. This division will be 31 and this 10 as it is. So answer is 3.1. 10. So after decimal point 1 digit. So answer is 3.1. Now the same question we will solve by our regular method. 6.2 divided by 2. Now always remember that while solving this, the number before the point should be taken separately and the number after the point should be solved separately. So let's first take this whole number 6. 2 3s are 6. Subtract it, we will get 0. Now this 2 will come here. Now see, the number after the decimal point we have brought down. So this means we have started solving the decimal part. डेसिमल पार्ट सॉल्व करने की शुरुआत हमने कर दी है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद का डिजिट अब हम नीचे ला रहे हैं. तो जब हम डेसिमल पार्ट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तब तुरंत यहाँ पे भी हम डेसिमल पॉइंट देते हैं. सो आफ्टर 3 वी विल गिव अ डेसिमल पॉइंट. नाउ वी वांट 2. सो 2 1s are 2. Subtracted, remainder is 0. So in this method also we got the answer 3.1. So according to me this is the easier method. Now let's see one more example. 3.4 divided by 5. First method. 3.4 divided by 5 can be written as 34 upon 10 divided by 5 upon 1. Now division cannot be solved directly, so convert into multiplication. 5 upon 1 का उल्टा 1 upon 5. Now
34 into 1 34 and 5 into 10 is 50. अब यहाँ पे हमने 10 into 2 किया नहीं था और यहाँ पे 10 into 5 सॉल्व कर दिया. ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे 62 और 2 मीन 62 2 से डिवाइड हो सकता है, पर यहाँ पे 34 5 से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो. नाउ दिस इज 50 एंड वी वांट आइदर 10 और 100, तो 50 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इंटू 2 मल्टीप्लाई बोथ बाय सेम नंबर. सो 34 इंटू 2 हाउ मच? 68 एंड 50 इंटू 2 इज 100. तो अब आ गया हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन, नीचे 100 है इसलिए, एंड 68 अपॉन 100 कैन बी रिटन एज 0.68. So this is the answer of this division. So this is a long method. Now we will do by our regular method. 3.4 divided by 5. Now just now I told you that पॉइंट के पहले वाला पार्ट अलग से सॉल्व करेंगे उसको होल नंबर समझ के, और पॉइंट के बाद वाला पार्ट अलग से. सो हियर बिफोर द पॉइंट देयर इज 3, सो 3 इज स्मॉलर देन 5. सो सबसे पहले हम यहाँ लेंगे 0 ज़ा 0, subtracted, again we will get 3. now we will take 4 down, मतलब पॉइंट के बाद वाला पार्ट नीचे लिया तो तुरंत ऊपर भी हमें क्वोशंट में पॉइंट देना है. नाउ 34 सर्च इन द टेबल ऑफ 5. 5 6 30 minus 3 minus 3 0. Here it is 4. Now here in the question already decimal point is there. तो पॉइंट के बाद अगर हम लास्ट में ज़ीरो लेते हैं तो उससे वैल्यू चेंज नहीं होती है, क्योंकि उस ज़ीरो का कोई मीनिंग नहीं होता है. तो अगर हमने यहाँ पे ज़ीरो लिख भी दिया तो क्वेश्चन यही रहेगा, क्वेश्चन चेंज नहीं होगा. 3.4 and 3.40 both are same only. Now why we have taken this 0? Because this 0 we can bring down and we can complete this division. So 5 8s are 40, 0 0. So answer we got is 0.68. So just what you have to remember, decimal point question में पहले से ही है, तो उसमें हम लास्ट में ज़ीरोज़ ले सकते हैं क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए. This 0 will not affect the question. It will not affect the meaning of the question. Meaning will be same only. Understood? Now the third one. 4.8 divided by 1.2. Now whenever there is a decimal point, listen carefully, whenever there is a decimal point in dividend and divisor both. In the previous example सिर्फ डिविडेंड में डेसिमल पॉइंट था और डिवाइज़र एक होल नंबर था, तो होल नंबर से हमने इजीली डिवीजन कर लिया. बट यहाँ पे डिवाइज़र भी एक डेसिमल नंबर है और डेसिमल नंबर से हम ऐसा डिवीजन नहीं कर सकते हैं. सो व्हाट वी विल डू, वी विल रिमूव दिस डेसिमल पॉइंट. नाउ हाउ टू रिमूव द डेसिमल पॉइंट? फर्स्ट आई विल टेल यू इन डिटेल, and from next time we will do directly shortcut. Now see here, 4.8 can be written as 48 upon 10 and 1.2 can be written as 12 upon 10. Now division cannot be solved directly, so 48 upon 10 as it is, middle sign multiplication and reciprocal of second number. Now 48 into 10 upon 12 into 10, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर. मल्टीप्लिकेशन है इसलिए 12 पहले लिखो 10 बाद में लिखो.
चलता है. नाउ 10 डिवाइडेड बाय 10 इज हाउ मच? 1. 10 divided by 10 is 1. So what will remain here? 48 upon 12. So actually what we have to do? 48 divided by 12. So 12 4 is a 48. Answer is 4. मीन्स ये डिवीजन का आंसर है 4. तो अब हमें आप बोलेंगे टीचर कि ये हमने तो फर्स्ट वाली मेथड यूज़ की है और हमने डिसाइड किया है कि हम सेकंड मेथड यूज़ करेंगे. तो ऐसे वक्त फिर फर्स्ट भी आएगा, सेकंड भी आएगा, दो करना पड़ेगा. सो नो नीड. बाय ऑब्जर्विंग ऑल दिस what we can say that whenever we remove this point to one place, then in divisor also we can remove the point to one place. मतलब यहाँ पे भी एक डिजिट है पॉइंट के बाद, यहाँ पे भी एक डिजिट है पॉइंट के बाद, तो हम ये दोनों पॉइंट डायरेक्टली हटा सकते हैं. व्हाट इज़ द रीज़न? द रीज़न इज़ ऑल दिस. बट अब हम नेक्स्ट टाइम से ये डायरेक्ट करेंगे. कब रिमूव करना है डेसिमल पॉइंट? अगर डेसिमल पॉइंट डिविडेंड में भी है और डिवाइज़र में भी है तो हम वो पॉइंट रिमूव कर सकते हैं जब पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है तो. और यहाँ पे पॉइंट रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको करना है डिवीजन. सो लेट्स बिगिन विद द प्रैक्टिस सेट 17. We will use only the method number 2. Let's begin. 4.8 divided by 2. Divisor is a whole number, so no need to remove the decimal point. Point remove करना ही नहीं है. Now start. 2 2s are 4 minus 0. Now 8 came down. The digit after the decimal point we have taken for solving. So give here decimal point in the quotient. ये भूलना नहीं है. Now 2 4s are 8. Remainder is 0. Therefore 4.8 divided by 2 is 2.4. Answer is 2.4. Now the second one. 17.5 divided by 5. Here also the divisor is a whole number, means no need of removing the decimal point. Directly solve. 17.5 divided by 5. So take 17. पॉइंट के पहले का अलग से सॉल्व करना है. ओनली 1 लेंगे तो 1 5 से छोटा है, तो यहाँ पे हम लेंगे 1 7. दोनों एक साथ लेंगे. यहाँ पे पॉइंट के पहले एक ही डिजिट था इसलिए 2 एक साथ नहीं लिए और 0 से स्टार्ट किया. बट यहाँ पे पॉइंट के पहले 2 डिजिट अवेलेबल है, मीन्स 17 इज अ होल नंबर, दैट्स वाई वी कैन टेक 17 टुगेदर. सो 5 3s are 15. Subtract. 7 minus 5 2. This 5 bring down. पॉइंट के बाद का डिजिट नीचे लाया है सॉल्व करने के लिए, तो आंसर में तुरंत पॉइंट दे दो. नाउ 5 5s are 25. Subtract. Remainder is 0. So what is the answer of 17.5 divided by 5? Answer is 3.5. Understood? Now the third one. 20.6 divided by 2. Again divisor is a whole number, so directly start solving. 20.6 divided by 2. Now 2 10s are 20. At one time only we can take 2 10s are 20. 0 0. Now this 6 will come down. The digit after point we have taken now, so give here point. Now 2 3s are 6. Subtract. Remainder is 0.
So what is the answer of 20.6 divided by 2? Answer is 10.3. Now the last one of this question. 32.5 divided by 25. डिवाइज़र इज़ होल नंबर, यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो डायरेक्टली सॉल्व करेंगे. डिवाइड बाय 25. नाउ इफ़ वी टेक ओनली 3 इट इज़ लेस देन 25, सो 3 2 हम साथ में लेंगे. पर अगर यहाँ पे ऐसा होता क्वेश्चन में 3.25 तो हम 32 साथ में नहीं ले सकते थे क्योंकि 3 पॉइंट के पहले है, 2 पॉइंट के बाद है. पर यहाँ पे 32 एक साथ है, होल नंबर है और ये डेसिमल पार्ट कहते हैं हम इसको. सो वी कैन टेक 25 1 जा 25. सब्ट्रैक्ट 2 minus 5 not possible, so borrow. 12 minus 5 7, 2 minus 2 0. Now 5 we will bring down. पॉइंट के बाद का डिजिट नीचे आया है तो यहाँ पे पॉइंट देना है. नाउ 25 3 ज़ा 75, रिमाइंडर इज 0. सो आंसर ऑफ 32.5 डिवाइडेड बाय 25 इज 1.3. नाउ वी विल सी अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो हम क्या करते थे. 25 तो यहाँ पे 3 और 2 एक साथ नहीं लेना है और 3 अगर सिर्फ लिया तो वो 25 से छोटा है, उसके लिए हम लेंगे 0 ज़ा 0, 3 ही बचेगा. पर अब 3 के साथ कौन आएगा 2, पर 2 डेसिमल पॉइंट के बाद वाला नंबर नीचे लिया है तो यहाँ पे आंसर में आ जाएगा पॉइंट. नाउ 25 1 ज़ा 25, सब्ट्रैक्ट इट वी विल गेट 7, 5 नीचे 35 25 3 ज़ा 75. तो अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो आंसर रहता था 0.13 एंड नाउ द आंसर इज़ 1.3. मतलब पॉइंट यहाँ जितना लेफ्ट में सरकेगा उतना ही आंसर में भी लेफ्ट में वो सरकते जाएगा. सो लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व द 4 क्वेश्चंस. नाउ वी विल मूव ऑन टू द वर्ड प्रॉब्लम्स. So the first word problem. A road is 4 kilometer 800 meter long. एक रास्ता है, वो कितना लंबा है रास्ता 4 kilometer and 800 meter. If trees are planted on both the sides at interval of 9.6 meter, how many trees were planted? मतलब ये जो इतना लंबा रास्ता है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. 9.6 मीटर पे एक ट्री, फिर 9.6 मीटर पे दूसरी ट्री, ऐसे करके ट्री प्लांट करना है. मीन्स ये पूरे रोड के हमें इक्वल पार्ट्स करने हैं. दैट मीन्स वी हैव टू डू डिविजन. अनदर थिंग, दिस नंबर इज इन मीटर एंड दिस नंबर इज इन किलोमीटर एंड मीटर मिक्स. सो व्हाट वी विल डू, we will convert this number also in meter. दोनों नंबर के यूनिट सेम चाहिए तभी ही हम कोई ऑपरेशन कर सकते हैं. whenever the units are same then only we can perform any mathematical operation, whether it is addition or subtraction or multiplication or division. Units should be same. Now see here, 1 kilometer means 1000 meter. सो 4 किलोमीटर मीन्स 4000 मीटर. तो रोड कितना लंबा है 4000 मीटर एंड 800 मीटर. मीन्स टोटल हाउ मच 4800 मीटर इज द लेंथ ऑफ द रोड एंड दिस वी हैव टू डिवाइड बाय 9.6. नाउ सी केयरफुली, हियर देयर इज डेसिमल पॉइंट इन डिवाइजर एंड नो डेसिमल पॉइंट इन डिविडेंड. तो पहले हम डिविडेंड को डेसिमल पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे. अब डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, फिर भी ज़बरदस्ती देना है तो क्या करेंगे, पॉइंट देंगे और लास्ट में 0 लिख देंगे. सो द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन विल नॉट चेंज.
नाउ सी बोथ आर हैविंग पॉइंट और पॉइंट के बाद एक एक डिजिट है, तो ये पॉइंट डायरेक्टली रिमूव हो जाएगा और बिना पॉइंट के ये पूरा का पूरा नंबर एज इट इज़ लिखना है, जैसे हमने यहाँ किया था. 0.8 0.2 दोनों हट गया, क्या बचा 48 एंड 12. इन द सेम वे पॉइंट के बाद सेम डिजिट्स है, यहाँ पे भी एक डिजिट है, यहाँ पे भी एक डिजिट है, तो पॉइंट को डायरेक्टली आप डिलीट कर दो और बचा हुआ सब वैसे ही लिख दो. सो 48000 and 96. So actually we have to do this division now. 48000 divided by 96. So we know that 96 5s are 480. So here it will be 0 0 0. Then this 0 will come down, and for this 0, 96 zeros are 0. Now this 0 will come down. For this 0 again 96 zeros are 0. So total how much trees we can plant? 500 trees we can plant on one side of the road. So दोनों साइड मिला के कितना होगा? 500 plus 500, 1000 trees were planted on both side of the road. Okay, अंडरस्टूड हाउ टू डू डिवीजन. दोनों में अगर पॉइंट है और पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट है तो पॉइंट डायरेक्टली आप डिलीट कर सकते हैं. और एक में पॉइंट है डिवाइज़र में और डिविडेंड में नहीं है, तो क्या करना है? पॉइंट लेके 0 लिखना है. ऐसा कब करना है? जब डिविडेंड में पॉइंट नहीं है. यहाँ पे वैसा नहीं करना है. यहाँ पे डिवाइज़र होल नंबर है तो डायरेक्ट डिवीजन हो सकता है. यहाँ पे जब पॉइंट आता है तो प्रॉब्लम होती है. सी हियर. सो दैट टाइम वी हैव टू रिमूव द पॉइंट. नाउ द नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम. प्रज्ञा एक्सरसाइजेस रेगुलरली by walking along a circular path of a field. She goes for walking on a circular path. She walks a distance of 3.825 kilometer in 9 rounds. How much does she walk in 1 round? जब वो उस फील्ड के 9 चक्कर लगाती है, when she walks 9 rounds, total distance she covers is 3.825 किलोमीटर. तो अगर वो 9 राउंड में इतना चलती है तो 1 राउंड में कितना चलेगी? मीन्स अगेन वी हैव टू डू हियर डिवीजन. सो इन 9 राउंड्स डिस्टेंस वॉक्ड इज दिस मच, therefore in 1 round distance walked will be division. Now here divisor is a whole number, so directly start the division. नाउ 3 लेस देन 9 और 3 के साथ 8 को नहीं ले सकते, पेयर नहीं बना सकते क्योंकि 8 इज आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. सो वी विल स्टार्ट विद 0. 9 zeros are 0. वी विल गेट हियर 3. नाउ 8 विल कम डाउन एंड हियर वी विल गिव अ पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला डिजिट हमने नीचे लाया है तो यहाँ पे भी पॉइंट देंगे. नाउ 38 इन द टेबल ऑफ 9 not coming, so 9 4s are 36. Subtract 8 minus 6 2. Now this 2 here. Now 9 2s are 18. Again subtract 22 minus 18 is 4. 5 नीचे. Now 9 5s are 45. So remainder will be 0. So what is the answer? Pradnya walks 0.425 kilometer in 1 round. Understood? 9 round में इतना किलोमीटर तो 1 round में इतना किलोमीटर वो चलती है. Now the last question. A pharmaceutical manufacturer bought 0.25 quintal of hirda, a medicinal plant. What is hirda? It is a medicinal plant. मेडिसिन उससे बनता है उस प्लांट से. For 9,500 rupees.
इतना क्विंटल, क्विंटल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्विंटल? 1 क्विंटल मीन्स 100 kg। तो इतना 0.25 क्विंटल उसने खरीदा 9,500 रुपीज़ में। व्हाट इज द कॉस्ट पर क्विंटल ऑफ हिरडा? वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल। तो जब हमें 1 का निकालना है तो हमेशा हम करते हैं डिवीजन। कॉस्ट ऑफ 0.25 क्विंटल दिस मच, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल डिवीजन। अब डिवाइज़र में पॉइंट है और इसमें नहीं है, तो इसमें ज़बरदस्ती पॉइंट ले लो। यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ 2 ज़ीरो ले लो। यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट था इसलिए हमने यहाँ पे 1 ही ज़ीरो लिया पॉइंट के बाद। यहाँ 2 ज़ीरो की ज़रूरत है। पॉइंट के बाद लास्ट में चाहे जितने ज़ीरो लगा लो उससे क्वेश्चन तो चेंज नहीं होगा। सो वी हैव टेकन 2 zeros बिकॉज हियर वी रिक्वायर 2 zeros। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो डायरेक्टली पॉइंट रिमूव कर दो और नंबर एज इट इज़ लिखो 950000 एंड हियर इट विल बी एक्चुअली 025। पॉइंट हटाने के बाद क्या दिखेगा? 025, पर 025 मतलब ही 25। Now we will do this division. 4 zeros after 95. Now the table of 25. So 25 3s are 75. Subtract. Here it will be 0, here it will be 2. Now 0 will come down. Now 25 8s are 25 8s are 200. Subtract 0 0 0 and here there are 3 zeros remaining, so directly write down here 3 zeros. So this will be your answer. Cost of 1 quintal hirda is 38,000 rupees. Understood how to remove point? पहले तो पॉइंट के बाद 2 सेम डिजिट चाहिए, नहीं है तो थोड़ा एडजस्ट करो और डायरेक्टली पॉइंट को डिलीट कर दो। सो हियर वी कंप्लीट अवर प्रैक्टिस सेट 17. ऑल्सो वी कंप्लीट अवर लेसन नंबर 5. सो यू सॉल्व प्रैक्टिस सेट 17 in your notebooks. Understood? Thank you.